an analytical report on portrayal of women in print and electronic media. This is the assignment topic of E302, that is Gender, School and Society, the second core course paper of B.Ed second year in CCS University syllabus. This topic will be explained by Ms. Meenu Sachdeva, Assistant Professor at Diwan College of Education, Meerut. Now I would like to invite Dr. Suja George Stanley, Assistant Professor in Diwan College of Education, to introduce our next second resource person to the audience. Please, Suja ma'am, join us. Thank you, ma'am. Welcome to 15 days online workshop. Good afternoon to everyone. I take this opportunity to introduce today's guest speaker, Ms. Meenu Sachdeva, Assistant Professor in Diwan Institute of Management Studies. As far as concerned with her qualification, Madam had master's degree in 5 subjects respectively: MSc in Zoology, MA in Hindi, Education and Economics, and qualified with NET in Education. She has published many chapters in books and presented papers in many national and international seminars. She has certified for attending number of FDPS conferences, panel discussion, etc. Madam got award for excellence in academics, Diwan Institute of Management Studies in the year 2022. She is also an abacus trainer. Today, ma'am will discuss the assignment of E302, Gender, School and Society. The topic is preparing analytical report on portrayal of women in print and electronics media. And I am sure the students will be definitely beneficial with this lecture. Now I would like to request Ms. Meenu Sachdeva ma'am to address the viewers. I welcome you, ma'am. First of all, I would like to thank all the organizing team, and my special thanks goes to our Honorable Principal, Dr. Shivpal Singh, who has clubbed us all for this 15 days workshop. And he also encouraged us, today he has given me this opportunity to represent myself, to represent my views on the given topic. Thank you so much, sir. I would like to share my PPT. I, Meenu Sachdeva, Assistant Professor at Diwan Institute of Management Studies. Today, I am here to present to tell about the assignment of the subject Gender, School and Society, that is of B.Ed second year subject, and the topic today to discuss is preparing analytical report on portrayal of women in print and electronic media. First of all, I want to explain what is assignment. Assignment हम बनाते हैं, हम फर्स्ट ईयर में भी बनाते हैं, सेकेंड ईयर में भी बनाते हैं, बट ये असाइनमेंट होता क्या है एक्चुअल में? Assignment is a specified task or amount of work assigned to undertaken as if assigned by authority. हमारी जो अथॉरिटी होती है, हमारे जो टीचर्स होते हैं, वो हमें कोई वर्क असाइन करते हैं, हमें कुछ टास्क देते हैं करने के लिए, उसे हम असाइनमेंट कहते हैं। एकेडमिक में भी क्या होता है असाइनमेंट? An assignment is a piece of work or task in academic. It provides opportunity for students to learn, practice and demonstrate they have achieved the learning goals. उन्होंने सीखने के दौरान जो भी गोल्स किए हैं, मतलब जो भी उन्होंने सीखा है, उसको सीखने का, उसको प्रैक्टिस करने का और फिर उसको अपने वर्ड्स में डिमॉन्स्ट्रेट करने का एक तरीका होता है असाइनमेंट। ठीक है,
It provides the evidence for teachers that the students have achieved the goals. तो इससे क्या होता है, टीचर को एक साक्ष्य मिल जाता है कि स्टूडेंट ने कितना गोल अचीव कर लिया है। स्टूडेंट जो है, हमने जो सिखाया है उसमें से स्टूडेंट कितना सीख चुका है। तो असाइनमेंट जो है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य होते हैं असाइनमेंट को बनाने के लिए। हम लोग और क्लासेस में भी असाइनमेंट बनाते हैं, छोटी क्लासेस में भी, फिर बीएड में आके फिर हम असाइनमेंट बनाते हैं। तो असाइनमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम असाइनमेंट बनवाते हैं स्टूडेंट से। तो एक तो इसका उद्देश्य ये होता है कि इट हेल्प्स टीचर्स टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, कि स्टूडेंट ने कितना सब्जेक्ट को समझ लिया है, जो हमने उसको टीच किया है स्टूडेंट ने उसको कितना समझा है। ये हमें असाइनमेंट के थ्रू पता चलता है। जब हम उनको टास्क देते हैं कि आपको इस टॉपिक पर ये वर्क करना है, तो ये वर्क स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, हमें टीचर्स को ये असाइनमेंट के थ्रू पता चलता है। क्योंकि असाइनमेंट जो है वो बच्चे अपने ही वर्ड्स में, अपनी ही थिंकिंग से, अपनी व्यूज से बनाते हैं। Assignment develop different practical skills and increase their knowledge base significantly. Assignment से students के लिए different practical skills को develop करते हैं। मतलब students में अलग अलग, उसको जो हमने task दिया है उसको व्यवहारिक रूप से वो कैसे प्रयोग कर सकता है, और उसकी जो आधारभूत ज्ञान है उसको वो बढ़ाता है। As per educational experts का ये कहना है कि mastering a topic is not an impossible task to achieve if they learn and develop these skills. अगर ये skills, अगर ये practical skills एक student में develop हो जाते हैं, तो किसी भी topic में mastery हासिल करना उसके लिए impossible नहीं है। मीन्स किसी भी अगर ये स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जो हम असाइनमेंट में डेवलप करते हैं बच्चों में, तो वो किसी भी टॉपिक में मास्टरी हासिल कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स को क्या फायदे हैं असाइनमेंट बनाने के, उनको क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स की जो है strengthens your command over the topics, जो टॉपिक उनको दिया गया है उसके ऊपर उनकी कमांड हो जाती है। उस टॉपिक को वो कहीं भी, कभी भी, कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा एनहांस द राइटिंग कैलिबर। राइटिंग कैलिबर इसका मतलब ये नहीं है कि सुलेख जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। इस एनहांस द राइटिंग कैलिबर का मतलब ये है कि वो लिखने की कला सीखते हैं। कला से मतलब कि जैसे टीचर्स हैं, जैसे बीएड के टीचर्स हैं, कल को वो कोई बुक लिखना चाहते हैं या कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो उनकी वो राइटिंग कैलिबर भी, उसकी लिखने की जो क्षमता है वो वहां पर विकसित होती है। किसी भी कंटेंट को अच्छे से लिखने की या एक बुक को लिखने की उनके अंदर क्षमता एनहांस होती है। अ बूस्ट टू द कॉग्निटिव थिंकिंग स्किल्स, उनकी जो संज्ञानात्मक सोच है उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें विकास होता है स्टूडेंट्स में। लर्न बेटर रिसर्चिंग स्किल्स, उनको रिसर्चिंग स्किल्स भी उनके अंदर डेवलप होती है कि किस तरह से हम रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि असाइनमेंट के दौरान क्या करते हैं बच्चे, इस एक टॉपिक के लिए कंटेंट को अलग अलग जगह से वो कलेक्ट करते हैं, उसके लिए वो रिसर्च करते हैं, तो उनके अंदर रिसर्चिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। लर्न टू अप्लाई इन रियल लाइफ सिचुएशन, कि हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी कंटेंट को हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टूडेंट इसको सीखता है। क्योंकि कोई भी हम ज्ञान जो लेते हैं, अगर हम उसको व्यवहारिक रूप में नहीं प्रयोग करते हैं तो उस ज्ञान का हमें कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ज्ञान को हमें व्यवहारिक जीवन से भी रिलेट करना जरूरी होता है। तो ये असाइनमेंट बनाने के फायदे हैं। तो अब हमने ये सीख लिया कि हमें असाइनमेंट क्यों बनाना चाहिए। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि असाइनमेंट बनाने कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं।
अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट बनाने के एसेंशियल स्टेप्स क्या हैं, क्या जरूरी स्टेप्स हैं जो हम असाइनमेंट लिखने बैठते हैं। तो पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर हमें एक उसकी मेन बॉडी लिखनी होती है, और फिर हमें लिखना होता है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं ये मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमें ये सीख लेना है कि हमें एक असाइनमेंट लिखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से समझना है कि हमें टॉपिक क्या दिया गया है और उस पर हम क्या कंटेंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमें चूज द वर्ड्स केयरफुली। हमें जो असाइनमेंट में वर्ड्स लिखने हैं उनको हमें केयरफुली यूज करना है। जैसे कि अभी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की क्लास में बताया गया था कि एक टीचर को सिनोनिम्स या पर्यायवाची क्यों सीखने होते हैं, क्योंकि उनका जो वर्ड सिलेक्शन हो वो बेटर हो। एक टीचर को हमेशा सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और असाइनमेंट के लिए हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज को यूज नहीं करते बल्कि हम बुकिश लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो हमें वही वर्ड्स यूज करने हैं यहाँ पर जो हमारे बुकिश लैंग्वेज को शो करता है। इसके बाद आता है फॉलो अ सिंपल येट इंट्रिग्विंग राइटिंग स्टाइल। हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो सिंपल तो होना चाहिए। सिंपल मीन्स जो इजीली समझ में आ जाए, इजीली गेन कर सके रीडर, लेकिन इसके साथ ही इंट्रिग्विंग भी होना चाहिए। मीन्स अट्रैक्शन भी होना चाहिए उसके अंदर कि रीडर को पढ़ने में और अच्छा लगे, मजा आए उनको। तो इस तरह से हमारी जो कंटेंट होना चाहिए वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, बट इट शुड बी इंट्रिग्विंग। यूज टेक्निकल जार्गन्स केयरफुली। जो हमें टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, जो शब्द जाल होता है, तकनीकी शब्द जाल, उसे हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि तकनीकी शब्द जाल से कई बार क्या होता है, हमारा जो कंटेंट होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है रीडर से। तो इसीलिए उन वर्ड्स को हमें यूज तो करना चाहिए बट हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, जिससे हमारा कंटेंट ज्यादा डिफिकल्ट ना हो जाए। इसके बाद है डिवाइड द एसे इनटू शॉर्ट पैराग्राफ्स। हमें जो एसे लिखना है, हमें पूरी जो मेन बॉडी लिखनी होती है उसको, ये नहीं कि हमें पूरे कंटेंट को ऐसे कैसे उठा के लिख दिया, उससे हमारा कंटेंट बहुत बोरिंग हो जाता है। हमें उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखना है। एंड देन प्रूफ, चेक एंड कॉपी, एडिट। अगर हमें पहले अपने पूरे असाइनमेंट को लिखकर और फिर उसको प्रूफ चेक करना होता है कि उसमें कहीं गलती तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या अदर कोई ऐसी हमने लैंग्वेज यूज कर रखी हो जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें प्रूफ चेक करना होता है और फिर हमें उसको एडिट करना होता है अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। इसके बाद हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए असाइनमेंट लिखने के लिए। सबसे पहले तो एनालाइज द गिवन टॉपिक। हमें जो टॉपिक दिया गया है उसे हमें एनालाइज करना है, उसे हमें पूरा विश्लेषित करना है। एक एक वर्ड को हमें समझना है कि ये टॉपिक हमें क्यों दिया गया है, इसको देने का क्या ऑब्जेक्टिव है और हमें इसमें क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या हमें कंटेंट इसमें देना चाहिए। फिर इसके बाद आता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स एंड डिस्कस थिंग्स। तो हमें इसके क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को, जो इसके महत्वपूर्ण पार्ट हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेन पार्ट्स क्या हैं, और फिर हमें उसको डिस्कस करना है। हम अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं, हम अपने साथियों से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। देन क्रिएट एन आउटलाइन। फिर जब हमें ये अंडरस्टूड हो जाता है कि हमारा टॉपिक क्या है, इसमें का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं। इसके बाद स्टार्ट रिसर्चिंग। जब हमारे माइंड में
आउटलाइन बन जाती है कि हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए, हमें कहाँ से उठाना है, कैसे करना है। फिर हम उसको लेकर रिसर्च करनी स्टार्ट कर देते हैं। हम अलग अलग बुक्स से रिसर्च करते हैं, हम गूगल से भी रिसर्च करते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट से भी रिसर्च करते हैं। तो जहां से भी हमें कंटेंट मिलने की उम्मीद होती है, हम वहां जाकर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं। देन राइट योर ड्राफ्ट। फिर हम अपना एक ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं। हमने जो भी कंटेंट इकट्ठा किया है उसका हम एक ड्राफ्ट बना लेते हैं कि हमें ये पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। इंक्लूड योर सोर्सेज। फिर हम जो हमने सोर्सेज यूज किए हैं या हमें करने हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देन प्रूफ रीड, एडिट, रीराइट एंड रिपीट। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये तो अब तक ये हुआ कि असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको क्यों लिखना चाहिए, आपको इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं और आपको क्या स्टेप्स फॉलो करके असाइनमेंट लिखना चाहिए। तो अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ असाइनमेंट का, दैट इज फॉर बीएड सेकंड ईयर। सब्जेक्ट इज जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, दैट इज E302 एंड टॉपिक इज जो मैंने लिया है दैट इज प्रिपेयरिंग एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन पोर्ट्रायल ऑफ वीमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इस टॉपिक पर मैं आपको एक असाइनमेंट कैसे तैयार करते हैं वो समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जो फ्रंट पेज लेते हैं वो इस टाइप का होता है। इसमें हमारा इंस्टीट्यूट का नेम या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, जो जिससे भी आप रिलेट करते हैं उसका नेम लिखना है। साथ ही साथ आपको इसमें इंस्टीट्यूट का लोगो लगाना बहुत जरूरी होता है। और फिर आप कौन से सेशन के हैं, बीएड के हैं तो बीएड में कौन से सेशन में हैं आप, आपका सेशनल वर्क है ये, और असाइनमेंट का सब्जेक्ट क्या है आपका और टॉपिक क्या है। सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। सबमिटेड टू में जिस टीचर को आपको ये सबमिट करना है असाइनमेंट या जिनसे चेक कराना है, और सबमिटेड बाय में स्टूडेंट का नाम। तो ये आपको फ्रंट पेज तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में हम क्या लिखते हैं, एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट और रिसर्च इज रिटन टू शो ग्रेटिट्यूड टू द पर्संस और इंस्टीट्यूशंस who significantly contributed during the project and help you directly or indirectly to complete your project. आपको आभार व्यक्त करना होता है कोई भी पर्सन जिसने आपकी हेल्प की है या जिस इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं या जिसने आपको ये प्रोजेक्ट वर्क दिया है या आपको समझाया है इसके बारे में, जिससे भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प मिली है, तो उनको आप यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद आती है इंडेक्स या निर्देशिका। इंडेक्स में आपको क्या लिखना होता है, ये भी एक कंपल्सरी पार्ट है आपके असाइनमेंट का, क्योंकि इंडेक्स से ही हमें पता चलता है कि आपने पूरे असाइनमेंट में क्या क्या लिखा है। तो इंडेक्स आपकी सब शो कर देती है। इसमें हमें सीरियल नंबर लिखना होता है। सीरियल नंबर में क्या लिखना होता है, पेज नंबर 1 2 3 4, मतलब किस सीरियल में आपने टॉपिक्स लिखे हैं। जैसे सीरियल नंबर 1 में आपने कोई टॉपिक लिखा है, वहां पे टॉपिक का नाम आएगा, उसके बाद वो टॉपिक आपका किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक आपने लिखा है तो वो यहाँ मेंशन करेंगे पेज नंबर के नीचे। इसके बाद आपने किस डेट में वो टॉपिक लिखा है वो डेट मेंशन करेंगे, और सिग्नेचर में जो टीचर हैं वो अपने रिमार्क्स देते हैं या सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ये मेन पार्ट होता है असाइनमेंट का। The opening paragraph of an assignment must contain a clear project statement. आपके जो प्रोजेक्ट है जिस टॉपिक पर है उसका क्लियर स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। एक तरह से आपको समरी लिखनी है, जिस समरी में ये डिस्क्राइब हो रहा है कि आपने वो टॉपिक, क्या टॉपिक आपने लिया है।
और आपको यहाँ पर उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस भी बतानी होती है और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने जो ये टॉपिक लिया है तो इसका क्या महत्व है लेने का, तो ये वो सब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको बताना होता है। एक तरह से आप टॉपिक की समरी यहाँ पर लिखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। फिर हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्रिपेयरिंग एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन पोर्ट्रायल ऑफ वुमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हमें ये नहीं करना है कि हम डायरेक्ट बस वीमेन पोर्ट्रायल लिख देंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। हमें 2 पेज का असाइनमेंट नहीं बनाना होता है, बल्कि हमें, जैसे मैंने कहा था, टॉपिक को पहले एनालाइज करना है। तो एनालाइज कैसे करेंगे हम? प्रिपेयरिंग एनालिटिक रिपोर्ट ऑन पोर्ट्रायल ऑफ वीमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वीमेन की प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या पोजीशन है या क्या उनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वीमेन की क्या पोजीशन है इंडिया में। पहले एंशिएंट पीरियड में क्या पोजीशन थी, मिडिवल पीरियड में क्या पोजीशन थी, और अब जो है मॉडर्न पीरियड में उनकी क्या पोजीशन है। हमें डायरेक्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कर देना है, हमें पहले एक भूमिका बनानी होती। भूमिका में हमें ये लिखना होता है कि वीमेन की क्या पोजीशन है, स्टेटस ऑफ वीमेन इन एंशिएंट टाइम। तो सबसे पहले हमें टॉपिक्स शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटस ऑफ वुमेन लिखना है। एंशिएंट टाइम्स में हमारा वैदिक पीरियड आता है और फिर हमारा बुद्धिस्ट पीरियड आता है। तो हम वैदिक पीरियड में क्या पोजीशन थी? ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड women enjoyed a fair amount of freedom and equality. The Vedic period can best be termed as a period of feminine glory and prestigious life. ठीक है, तो वैदिक पीरियड में जो वीमेन की पोजीशन थी वो काफी अच्छे स्टेटस पर थी। उनको फेयर अमाउंट था फ्रीडम का और इक्वालिटी का। ठीक है, तो जो भी इससे रिलेटेड हम कंटेंट कहीं से भी कट, ये मैंने थोड़ा सा पोर्शन दिया है एग्जाम्पल के लिए कि आपको किस तरह से लिखना है। तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, अपना कंटेंट आपको खुद चूज करना है और उसके बारे में इससे भी अच्छा आपको डिस्क्राइब करना है। फिर बुद्धिस्ट पीरियड में क्या पोजीशन थी? In Buddhist period, the position of women improved to some extent. थोड़ी सी और improve हुई। In the religious field, women came to occupy a distinctly superior place. क्योंकि बुद्धिस्ट पीरियड में क्या था, वीमेन की पोजीशन रिलीजियस फील्ड में थोड़ी सी सुपीरियर हो गई थी। They had their own संघ called भिक्षुनी संघ। तो उन्होंने अपना एक वीमेन ने भिक्षुणी संघ बनाया था, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी पोजीशन क्या थी। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट मिलता है आप और जगह से भी ढूंढ कर ला सकते हैं और इसको यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है कि बुद्धिस्ट पीरियड में वीमेन की क्या पोजीशन थी। However, their economic status remained unchanged. उस पीरियड में भी उनकी इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अनचेंज था। इसके बाद आया मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में क्या था, उनकी जो पोजीशन है वो कुछ डाउन हो गई थी। दिस पीरियड प्रूव्ड टू बी हाईली डिसअपॉइंटिंग फॉर द इंडियन वुमेन। द मुस्लिम इन्वेजन ऑफ India changed the direction of Indian history. Women had to face a number of problems, of which the following may be noted: practice of child marriage, prohibition of widow remarriage, practice of sati and devdasi system and parda system। तो ये सभी सिस्टम जो है मिडिवल पीरियड में एंटर हुए, तो वीमेन की जो पोजीशन थी वो डिसअपॉइंटिंग हो गई थी। उसके बाद आया हम मॉडर्न टाइम। आज के समय में वीमेन की क्या पोजीशन है? स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया इज अ सॉर्ट ऑफ पैराडॉक्स। If on one hand she is at the peak of ladder of success, on the other hand she is
suffering the violence afflicted on her by her own family members. एक तरफ तो वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही है और दूसरी तरफ क्या है, उसको वायलेंस किया जा रहा है अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के द्वारा. As compared with past, women in modern times have achieved a lot, but in reality they have to still travel a long way. अभी भी उनको काफी सफर करना पड़ रहा है. ये इंडिया में तो ये पता चलता है फीमेल के रेशो से, देयर आर 917 फीमेल per 1000 male in India according to the census of 2011, which is much below the world average of 990 females. तो इंडिया में जो आज के टाइम में भी वीमेन की पोजीशन अभी डाउन ही है. उस और किस किस फील्ड में उनकी जैसे उनके मेल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ, लेक ऑफ एजुकेशन, मिस ट्रीटमेंट, ओवरवर्क, ये सभी फेस कर रही है एक वीमेन. उसके बावजूद भी वीमेन ने अलग अलग फील्ड में अपने कदम जमाए हैं. अलग अलग फील्ड में उसने सक्सेस प्राप्त की है और वो मैन से भी आगे गई है कई फील्ड में. तो ये सब स्टेटस होते हुए भी वीमेन की हमने देखा एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक क्या क्या पोजीशन रही और आज के टाइम में भी वीमेन की पोजीशन कितनी डाउन है. इसके बावजूद भी जो वीमेन है उसने कई फील्ड में गई है और सक्सेस उन्होंने गेन की है. इन सब के होते हुए उसने मास मीडिया में भी अपने कदम जमाए हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है. तो मास मीडिया में जो हमारा मेन टॉपिक है, वीमेन ने क्या अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मास मीडिया एक्चुअली है क्या. पहले हमें इसको डिस्क्राइब करना होगा, मीनिंग ऑफ मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन. तो नेक्स्ट पेज हमारा इस पर बनेगा कि मास कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है. मैंने छोटा सा लिखा है, द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट मैसेजेस to large publics and the process by which those messages are sought, used, understood and influenced by audience. तो मास मीडिया में क्या होता है, मैसेजेस को पहुंचाया जाता है हमारी ऑडियंस के पास थ्रू मास कम्युनिकेशन. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन के? इसमें कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे. कम्युनिकेशन वन वे होता है, बस एक तरफ से ही दूसरी तरफ जाता है. ऑडियंस हैज ग्रेट डील ऑफ चॉइस, रीच लार्ज एंड वास्ट ऑडियंस, एम मैसेजेस टू अट्रैक्ट लार्जेस्ट ऑडियंस पॉसिबल, influence society and are in turn influenced by the society. सोसाइटी को इन्फ्लुएंस भी करता है और सोसाइटी से इन्फ्लुएंस भी होता है मास मीडिया. तो मास मीडिया के थ्रू हम कोई भी मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं. ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया. इसके बाद नेक्स्ट पेज जो आपको यहाँ पर लिखना है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स. टाइप्स ऑफ मास मीडिया. मास मीडिया कितने टाइप्स का होता है? मास मीडिया इज ऑफ टू टाइप्स मेनली, दैट इज प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल्स जैसे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पोस्टर्स हैं. तो इस पेज पे आपको क्या करना है, प्रिंट मीडिया के जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समरी लिखनी है कि मैगजीन क्या होता है, न्यूज़पेपर्स क्या होता है एंड देन पोस्टर्स क्या होता है. और इससे रिलेटेड आपको पिक्चर्स भी लगानी है. हाँ, ये मैं शुरू से बताना भूल गई थी कि आपको जो भी कंटेंट लिखना है उनसे रिलेटेड पिक्चर्स भी आपको लगानी होती है, क्योंकि
इससे आपकी जो असाइनमेंट है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाती है और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। पिक्चर्स को देख के हम अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो मैगजीन, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको डिस्क्राइब करना है रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। व्हाट इज रेडियो, व्हाट इज टेलीविजन एंड व्हाट इज इंटरनेट। क्योंकि जो भी हम किसी को कंटेंट समझा रहे होते हैं उसमें जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उसको एक एक वर्ड को हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो हमें एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करना होता है। जैसे यहाँ पे हमें मैगजीन क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, पोस्टर्स क्या है, इस सबको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्योंकि हम एक बुक भी लिखते हैं तो उसमें एक एक कंटेंट को हम पूरा डिस्क्राइब करके लिखते हैं। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उनका क्या रिप्रेजेंटेशन रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पर कंटेंट लिखना है। मैंने थोड़ा सा कंटेंट आपको लिखकर दिखाया है। एग्जाम्पल, द रोल ऑफ वुमेन इन मीडिया रिवॉल्व्स अराउंड द 4 axes ऑफ मीडिया: मीडिया फ्रीडम, मीडिया प्लूरलिज्म, media independence and media safety. Women in media face the same difficulties and threats as men, as additionally experience gender inequalities, safety issues और under representation. ये सभी हर जगह ही women को face करना होता है। gender equalities, safety issues, under representation, ये सभी जगह जो है women को अलग अलग रूप में फेस करना होता है। तो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जब वीमेन ने अपने कदम रखे तो यहाँ पर भी उनको ये सभी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि प्रिंट मीडिया में क्या रिप्रेजेंटेशन है। This content analysis demonstrated that women were generally portrayed in print ads in accordance with 4 primary stereotypes. Women were depicted primarily as sexual objects belonging in the home and dependent on men. In addition, they were seldom shown making important decisions or doing important things. तो सबसे पहले उनको जो प्रिंट मीडिया में इन्वॉल्व किया गया तो वो एड के रूप में ही इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, they were seldom shown making important decision और doing important things. ये important decision या important things करते हुए बहुत कम ही वीमेन को वहां पर दिखाया गया। ठीक है, मेन उनको क्या दिखाया गया? एज अ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स। तो उनके जो एड्स बनते थे वो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स के रूप में ही बनाए जाते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या रिप्रेजेंटेशन रही उनकी? यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि कंपेयर टू मैन, वीमेन आर मच लेस लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन द मीडिया ग्लोबली। कम ही उसको एज कंपेयर टू मैन, वीमेन को कम ही इसमें इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, a minimum of 25% of news on television, radio and in the press mention women as a topic. women को एक टॉपिक के रूप में ही मेंशन किया गया है, उनकी वहां पर इंक्लूडनेस नहीं थी, इंक्लूड नहीं किया गया था, इंक्लूड किया गया था एज अ टॉपिक ओनली। मैगजीन्स में काफी उनका रिप्रेजेंटेशन रही वीमेन की। until very recently Indian magazine advertisement continue to portray women in their stereotypical images. तो इनकी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस को यूज किया जाता था मैगजीन में, या फिर किचन, कुकिंग, फूड, washing a bucket full of clothes या bandaging wounds और feeding her husband and children। तो इसी रूप में वीमेन को मैगजीन्स में इंक्लूड किया जाता था। तो आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर लगानी है और जो भी कंटेंट आप कलेक्ट करते हैं वो कंटेंट यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स दोनों ही मीडिया में हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी।
तो एडवर्टीजमेंट में भी one of the sensitive area in the world of advertisement and marketing is portrayal of women. Women को बहुत ज्यादा include किया जाता था. Women are indispensable part of Indian society as they constitute half of the population and play critical roles. The way women are being presented in advertisement, a serious question arises on that. What are the products after all? मतलब क्या किस प्रोडक्ट में देना है ये भी नहीं सोचा जाता कि यहाँ पर वीमेन की नीड भी है या नहीं है. किस प्रोडक्ट को हम एडवर्टीज कर रहे हैं, टू होम इट इज बीइंग सोल्ड, ऑन दोज प्रोडक्ट्स शुड बी डन. कि किस प्रोडक्ट के लिए हम वीमेन को एडवर्टीजमेंट में, तो जो भी एडवर्टीजमेंट करना है हर उसमें वीमेन को हर इसमें वीमेन को डाल. तो ये भी नहीं सोचा जाता कि किस प्रोडक्ट के लिए हमें वीमेन को की इमेजेस को यूज करना है या उनके फिजिकली प्रेजेंटेशन को हमें वहां पर इंक्लूड करना है. तो इसमें जो वीमेन की पोर्ट्रायल है वो सबसे ज्यादा इसीलिए है कि शायद वीमेन को एक अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट समझा जाता है. तो वीमेन को अगर हम उस एड में डाल देते हैं तो शायद उनका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होगा. तो ये थिंकिंग में भी हो सकती है. तो आप इस पर और रिसर्च कर सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट में वीमेन की क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्यों है और क्या होनी चाहिए. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन टेलीविजन. टेलीविजन में भी आजकल आप लोगों ने देखा है कि वीमेन का काफी रिप्रेजेंटेशन है. काफी सीरियल्स टीवी पर दिखाए जाते हैं जो मोस्टली फीमेल बेस्ड होते हैं, in which the problems of women are and the atrocities on them are being shown with great ease so that they become aware of their rights. उनको अपने rights का पता चल सके इस तरह के भी सीरियल बनाए जाते हैं. Where on one side there were Dhara Panin trying to bring in the direction of the scenes. तो सीरियल्स में क्या हो दिखाया जाता है कि जो वीमेन हैं उनको मतलब उनको उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या उनकी क्या क्या राइट्स हैं, इसके लिए उनको अवेयर किया जाता है. इसके अलावा टेलीविजन में लाइव शो में भी बहुत वीमेन को दिखाया जाता है. तो वीमेन इस फील्ड में काफी आगे बढ़ी है टेलीविजन के फील्ड में, जिस पर आप और भी रिसर्च कर सकते हैं और इस पर और भी कंटेंट लिखा जा सकता है. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन सिनेमा. सिनेमा में भी आप लोगों ने देखा है कि वीमेन के बिना तो शायद कोई पिक्चर बनती ही नहीं है. सिनेमा इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स सोसाइटी एंड कल्चर ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर सोसाइटी और कल्चर से अलग ही रूप दिखाया जाता है. On the one hand, where it is affected by today's social values and social aspects, on the other hand, it also works to challenge the social values and to create a new image. जो समाज में वीमेन की इमेज है उससे अलग हटके ही सिनेमा में मोस्टली दिखाया जाता है. Their image remain become ideal, traditional, holy, depicted in a vision of tolerance and selflessness. उनकी जो टॉलरेंस है वो नहीं दिखाई जाती है, उनको एक आइडियल रूप में ही मोस्टली दिखाया जाता है. और एंसेंट टाइम में तो बिल्कुल सती सावित्री, सत श्री मूर्ति इस फॉर्म में विमेन को दिखाया जाता था, जो कि सोशल जो आपके इन्फ्लुएंस है उससे बिल्कुल अलग है. सोशल वैल्यू जो है विमेन की उससे बिल्कुल डिफरेंट है. बट फिर भी सिनेमा में काफी रोल है विमेन का और इसके बारे में और भी रिसर्च की जा सकती है. फिर नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन इंटरनेट.
इंटरनेट में वीमेन का क्या रोल है। In the present times, internet itself is emerging as a very essential commodity. Internet uses is increasing day by day. Internet is emerging as a boon in present times. आज के टाइम में इंटरनेट क्या है, एक boon है, एक हमारे लिए आशीर्वाद है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक तरफ तो इमेज ऑफ वुमेन इज बीइंग एनरिच्ड, वीमेन की इमेज एनरिच्ड हो रही है, और दूसरी तरफ क्या होता है, इसमें भी वीमेन वायलेंस का शिकार हो जाती है। Many people wrongly collect dirty information of women and even blackmail them. It is crime. तो सोशल मीडिया के आने से ये एक क्राइम भी बढ़ा है, वीमेन पे काफी इम्पैक्ट्स डालती हैं ये जो इंटरनेट है। इंटरनेट के जितने भी एप्स हैं ये वीमेन पर काफी इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक तरफ वीमेन की इमेज जो है वो बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वायलेंस हो रहा है। तो इस चीज पर भी हम काफी रिसर्च कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंटरनेट क्या है। इसके बाद हमने मेन बॉडी लिख दी है, इसके बाद हमें कॉन्क्लूजन लिखना होता है। कॉन्क्लूजन में हमें क्या लिखना है, और कॉन्क्लूजन इज द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इन अ रिसर्च पेपर, ऐसे और आर्टिकल दैट समराइज द एंटायर वर्क। जितना हमने वर्क लिखा है उस सबको समराइज करके हमें कॉन्क्लूजन में लिखना होता है। द कॉन्क्लूजन पैराग्राफ शुड रीस्टेट योर कंटेंट, summarize the key supporting ideas you discussed throughout work। जितने भी आपने पूरे वर्क में अपने आइडियाज प्रेजेंट किए हैं या डिस्कस किए हैं, उनको आपको सबको समराइज करना है, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है इससे भी हमारा इंप्रेशन जाता है हमारे जो अथॉरिटी होती है, जो हमारी टीचर्स होते हैं जिनको हमें सबमिट करना है। तो कंक्लूजन से हमें पता चलता है कि हमने पूरे कंटेंट में अपने कौन से आइडियाज को रखा है, क्या हमने इस टॉपिक के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद हम लिखते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी या संदर्भ सूची क्या होती है? अ बिब्लियोग्राफी इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस कंसल्टेड एंड साइटेड इन अ रिसर्च पेपर और प्रोजेक्ट। जितने भी आपने सोर्सेस लिए हैं कंसल्ट करने के लिए अपने कंटेंट को अपने प्रोजेक्ट में लिखने के लिए, तो जिस भी सोर्स को आपने कंसल्ट किया है उस सभी सोर्सेस को आपको बिब्लियोग्राफी में लिखना होता है। इसमें क्या क्या लिखते हैं आप? जैसे आपने किसी बुक से आपने कंसल्ट किया है तो उस बुक के ऑथर का नाम, उसका टाइटल और उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड द पब्लिशर फॉर ईच सोर्स वन कंसल्ट्स फॉर अ पेपर और प्रोजेक्ट। और इसके अलावा अगर किसी वेबसाइट से आपने कंसल्ट किया है तो उस वेबसाइट के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना होता है आपको। अगर आपने इसके अलावा किसी ई कंटेंट को यूज किया है, आपने कोई ई लाइब्रेरी यूज की है तो उसके बारे में आपको, या ई बुक आपने ली है उससे कंसल्ट किया है तो उसके बारे में, सभी के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना होता है बिब्लियोग्राफी में। इट वॉज ऑल अबाउट द असाइनमेंट। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।